کہ وہ ہمارے اندھے پن کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، اندھے پن کو دور کر دیتی ہے، اندھے پن سے ہمیں نکال کر ہمیں روحانی بینائی عطا کرتی ہے، تاکہ ہم روحانی طور پہ خدا کے کلام کی قدرت کو دیکھیں، روحانی طور پہ خدا کے کلام کی قیمت اور قدر کو جانیں، ہم روحانی طور پہ خدا کے کلام کی پاور کو اپنی زندگی میں لیں۔ خدا کا کلام ہمیں اندھے پن سے بنائی دیتا ہے، روحانی اندھے پن کو ختم کرتا ہے اور ہمیں روحانی طور پہ بڑھنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ دیکھیے ایک پاورفل چیز پاور دیتی ہے، اور جس میں خود پاور نہیں وہ دوسروں کو پاور کیا دے گی؟ اور خدا کے کلام میں پاور ہے، خدا کے کلام میں قدرت ہے، خدا کے کلام کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم بھی اس کے کلام سے روحانی طور پہ پاورفل ہو جاتے ہیں، ہم روحانی طور پہ اس کی قوت اور قدرت سے بھر جاتے ہیں، جو کہ روح القدس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور روح القدس بھی ہماری مدد تب کرتا ہے، روح القدس بھی ہمیں تب قوت دیتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو جان جاتے ہیں، جب خدا کے کلام کو پرکھ لیتے ہیں، جب خدا کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، تو اس وقت روح القدس ہمیں اور زیادہ طاقت اور قوت دیتا ہے۔ اور پھر ہم پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو پھر ہمیں یہ خدا کا کلام ہی ہے، خدا کے کلام ہی میں ایسی قدرت ہے، خدا کے کلام ہی میں ایسی قدر و قیمت ہے، خدا کے کلام ہی میں ایسی پاور ہے جو ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں نئے سرے سے کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ کیا میں اور آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتی ہے؟ پہلی پیدائش تو ہم اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں نا، جسمانی طور پہ، لیکن بعد میں جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کس سے ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام سے۔ ذرا سبھی اس بات کا جواب دیں، ہم نئی پیدائش کو کس کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں؟ سبھی طرح جواب دیں، ہم نئی پیدائش کو کس کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں؟ وہ کلام کس کا ہے؟ ہم خدا کے کلام کے سبب سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں گناہوں سے مخلصی حاصل ہوتی ہے، ہمیں گناہوں سے ابدی خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی قوت سے، خدا کے کلام کی پاور سے، خدا کے کلام کی طاقت سے، خدا کے کلام کی قدر و قیمت سے میں اور آپ نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے، خدا کا کلام ہے جو ہمیں پاور دیتا ہے، اور ہم گناہوں کی دالدل سے نکل کر خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے، اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ ہمیں گمراہی سے نکالتا ہے، ہمیں جینا سکھاتا ہے، پھر ہمیں ہمارے اندھے پن کو دور کرتا ہے، پھر ہمیں نئی پیدائش کو حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اور یہ قوت کس میں ہے؟ کہ نئی پیدائش ہم اپنے کاموں سے حاصل کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہم اپنی نیکیوں سے ہوتے ہیں؟ نہیں، نئے سرے سے پیدا ہونے میں ہمیں قوت کون دیتا ہے؟ خدا کا کلام۔ یہ وہی خدا کا کلام ہے جس کے وسیلہ سے میں اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق میں اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی خدا کے کلام کی طاقت سے۔ خدا کا کلام ہے جس کی پاور ہے، خدا کا کلام ہے جس کی طاقت ہے، خدا کا کلام ہے جو پاورفل ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہر چیز کا مقابلہ کر کے اسے زیر کرتا ہے، اسے ریزہ ریزہ کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام جب ہم میں ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر خدا کا کلام ہم میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں پہلا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، پہلا پترس دوسرا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور کیسی خوراک مہیا کرتا ہے؟ کیسی؟ دودھ میں بڑی پاور ہے، دودھ میں بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا، بشرطے کے خالص، بشرطے کے خالص، بشرطے کے خالص دودھ ہو اور اس میں
बड़ी पावर होती है। और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं खुदा के कलाम के सबब से, तो फिर ये ईमानदारों की एक खालिस खुराक बन जाती है। और जो नई पैदाइश हासिल करने के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद, निजात हासिल करने के बाद खुदा के कलाम को दूध के सबब से हासिल नहीं करता, वो रूहानी तौर पे कमजोर रहता है। एक दफा बच्चा जब अपनी माँ के बदन से पैदा हो जाता है तो उसके लिए खुराक का होना बेहद जरूरी है। कौन सी खुराक होनी चाहिए, कैसी खुराक होनी चाहिए? एक बच्चे के लिए किस तरह की खुराक माएं देती है बताइएगा? नाकिस, नाकाम, जिससे खुदा खास्ता बीमारियां पैदा हो, तो वालिदैन अपने बच्चों को कैसी खुराक देना पसंद करते हैं बताइएगा? कौन सी? खालिस, कि बच्चों को हमेशा अच्छी खुराक दिया करें, बच्चों को खालिस खुराक दिया करें। और जब हम जिस्मानी तौर पे पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें अच्छी चीज देते हैं, खाली चीज देते हैं, बेहतर से बेहतर चीज देते हैं। तो जब हम खुदा में से पैदा होते हैं तो क्या खुदा हमें अच्छी खुराक नहीं देता? देता है। और वो अच्छी खुराक और खालिस दूध क्या है? खुदा का कलाम। इस ही के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला ही से हम नए सिरे से पैदा होते हैं। फिर यही कलाम की पावर, यही कलाम की कुदरत, यही कलाम की कदर और कीमत हमें हर रोज परवरिश देती हुई नजर आती है। और हम खुदा के कलाम ही के सबब से नई खुराक, खालिस खुराक, कीमती खुराक जो कि खुदा का कलाम है, ये हजारों सोने के और चांदी के सिक्कों से बेशकीमत है। और ऐसी खुराक मुझे और आपको खुदा देता है जिससे हम रोज रूहानी तौर पे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और खुदा का कलाम नई पैदाइश हासिल करने के बाद हमें मसीही जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, हमें पावर देता है। हम खुदा के कलाम ही से पावरफुल होते हैं। अगर हम हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं, हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं, हमारे दिल के अंदर खुदा का कलाम का इसकी पावर, कुदरत, कदर कीमत नहीं, तो हम रूहानी तौर पे क्या है? कमजोर। क्या है? और बहुत से बहन भाई हमारे रूहानी तौर पे कमजोर हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई रूहानी तौर पे कमजोर है तो उसको बना किस ताकत की जरूरत है, किस खुराक की जरूरत है? इस खुराक के अलावा और कोई ऐसी रूहानी लोगों के लिए कुव्वत नहीं, ताकत नहीं जिससे वो ताकत हासिल कर सके। ये खुदा का कलाम है। नई पैदाइश हासिल करने में भी खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, पावर देता है। और फिर मसीही जिंदगी को बसर करने के लिए भी खुदा का कलाम ही हमें कुव्वत और ताकत देता है। आमीन। इसलिए इसको ना छोड़े, खुदा के कलाम को ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मुझे इस जुमे जब मैं दूसरी कलीसिया, दूसरे चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया तो वहां पर मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि भाई साहब एक पादी साहब वहां आए थे और खूब प्रस्तुति हुई, खूब प्रस्तुति हुई। 1.5 घंटा प्रस्तुति शुरू होती रही, पौना घंटा, यानी कि पौना 1 घंटे से ज्यादा प्रस्तुति होती रही, यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट तक प्रस्तुति होती रही। और कुछ वक्त प्रस्तुति करने वालों ने ले लिया और कुछ वक्त मीटिंग चलाने वालों ने ले लिया। उतना ही टाइम प्रस्तुति में एक गीत पर लगता था और उतना ही वक्त जो है वो जो मीटिंग चलाने वाला था वो बातों में इतना टाइम ले जाता था। और जब वो खुदा के खादम की बारी आई जिसने कलाम सुनाना था तो लोग मुझे बता रहे थे कि भाई साहब हमने घड़ी पर देखा और उसने सिर्फ 9 मिनट, कितने मिनट, कितने मिनट उसने कलाम सुनाया? क्या 1.5 घंटा 2 घंटे प्रस्तुति होती रहे और कलाम की बारी आए और सिर्फ 9 या 10 मिनट में सुनना चाहिए? और फिर नहीं, ये खुराक है। ये क्या है? ये हमारी खुराक है जो हमें पावर देती है, जो हमें ताकत देती है। ठीक है, प्रस्तुति करना भी ठीक है गीतों ज़बूरों से, जैसा कि हम कहते हैं कि गीत, ज़बूर और दुआएं जो हैं वो हमारे दिलों की ज़मीन को नरम करने के लिए होते हैं। और याद रखिए, आप प्रस्तुति करते रहें, गीत गाते रहें, दुआएं करते रहें, हमारे दिलों की जमीन जो बंजर होती है वो दुआओं और प्रस्तुति के वसीला से नरम और मुलायम हो जाए, ज़रख़ेज़ हो जाए, तैयार हो जाए। और इस दिल की जमीन के अंदर अगर खुदा के कलाम का बीज ना बोया जाए तो फिर उससे जमीन
तैयार जमीन का कुछ फायदा है कुछ फायदा? चलो हम खेत की बात करते हैं, दुनिया खेत की बात करते हैं कि जब एक किसान उसको उस पर हल चलाता है, सुहागा देता है, उस खेत को, उस एकड़ जमीन को तैयार कर लेता है, जब उसने बीज नहीं बोता तो क्या उस एकड़ जमीन का, उस खेत का कुछ फायदा होता है? उसे क्या किया जाए? कुछ फायदा? गीत गाते रहे, दुआएं करते रहे, साथ बजाते रहे, नारे लगाते रहे, वैसे ही इधर उधर की बातें करते रहे, तो क्या फायदा है? जब तक खुदा का कलाम हमारे दिलों की जमीन पर ना बोया जाए, इबादत का कोई फायदा नहीं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और वो खुद मुझे बताने लगे, कहने लगे मैं असाती करानो क्या से तो पादी साहब साढ़े हो गए ना ते तो अनुदा के कि 1.5 घंटा तुझे प्रस्तुत करनी है। ठीक है, प्रस्तुत करें, लेकिन ज्यादातर वक्त किसको दिया जाए? खुदा के कलाम को। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि खुदा के कलाम की ताकत, खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की कदर और कीमत। बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियां, बहुत से खातम हज़रात भी खुदा के कलाम की कदर और कीमत को नहीं जानते, खुदा के कलाम की कुव्वत और पावर को नहीं जानते। वो चंद मिनट जो है वो खुदा का कलाम सुनाएंगे, 10 मिनट तक खुदा का कलाम सुनाएंगे, 8 मिनट तक खुदा का कलाम सुनाएंगे, और फिर ज्यादातर वो जोर देंगे दुआएं करते रहें, ज्यादातर वो जोर देंगे प्रस्तुत करते रहें, लेकिन इस कलाम को टाइम नहीं देंगे। लेकिन याद रखिए, खुदा का कलाम हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारी पावर है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम के बगैर हम ठीक तरीके से दुआ भी नहीं कर सकते। जब हमारे दिल में खुदा का कलाम होगा तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ भी करेंगे। जब खुदा के कलाम को हम अपने दिल में जगह नहीं देते तो फिर खाली दिल से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। फिर वही बात आ गई कि ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ, ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। इसलिए दुआ करने से पहले हमारे अंदर खुदा का कलाम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें गुमराही से बचाता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें जीना सिखाता है। खुदा का कलाम हमारे अंधेपन को, रूहानी अंधेपन को दूर करता है। खुदा का कलाम जो है वो हमारी नई पैदाइश हासिल करने में हमें कुव्वत और ताकत और पावर देता है, और खुदा का कलाम मसीही जिंदगी को पसंद करने में भी हमें कुव्वत और ताकत देता है। और खुदा के कलाम में इतनी पावर है क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हर रोज हमें पाक से पाक तर करता जाता है। हमारी तकदीस बढ़ती जाती है, हम तकदीस में बढ़ते जाते हैं, हम सर्टिफिकेशन कबल में बढ़ते जाते हैं, हम पकीज़गी में बढ़ते जाते हैं। और इसमें हमें कुव्वत कौन देता है? खुदा का कलाम, खुदा का। और फिर खुदा का कलाम हमें हर दौर में, सुनिएगा, खुदा का कलाम हर दौर के अंदर हमें हालातों वाक़यात के बारे में भी आगाह करता रहता है। गुज़रे वक्त के लिए भी खुदा का कलाम हमें बताता है, मौजूदा वक्त के लिए भी खुदा का कलाम हमें बताता है, फिर आने वाले वक्त के लिए भी खुदा का कलाम ही हमें बताता है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जो माजी हाल और मुस्तकबिल के हालातों वाक़यात को बताए। दुनिया के अंदर एक ही किताब है जो हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में बताती है, और वो है बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम। हालेलुया। और खुदा का कलाम हर दौर के अंदर हमें हालातों वाक़यात से आगाह करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है, हमें आगाही देता रहता है कि गुज़श्ता वक्त में क्या होगा, हाल में क्या हो रहा है, और आने वाले कल में क्या होगा। यानी कि ये तीनों अदवार को हमें बयान करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में ताकत है, खुदा के कलाम में कुव्वत है, खुदा के कलाम में इतनी पावर है जो किसी और चीज में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलाम खुदा का है, ये कलाम खुदा का है। इसलिए खुदा का कलाम ही हमें हर दौर के अंदर वाक़यातों, हालात को बयान करता हुआ दिखाई देता है। ये जो वक्त है जिसमें से हम रह रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, ये भी हमें बाइबल मुकद्दस ही में से मिलता है। आप मत्ती सूरह अंजीली का उसका 24वां बाब पढ़े, आप मुख्तलिफ जो है वो खतूत पढ़े, आप लूका की इंजील पढ़े, आप इबाल की किताब को पढ़े, तो पूरा नया ऐतनामा भी आज के दौर के बारे में हमें बताता हुआ दिखाई देता है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है,
یہ سب کچھ خدا کے کلام کے عین مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں اتنی قوت اور پاور ہے کہ وہ سارے ادوار کے حالاتوں واقعات کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو جھگڑے لڑائیاں دھندے فساد ہو رہے ہیں، یہ کہاں پر لکھا ہے بتائیے گا؟ کسی معاشرتی علوم کی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی پریکٹیکل کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسی باتیں؟ تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو لڑائیاں جھگڑے دھندے فساد گھر گھر میں ہو رہے ہیں، یہ ہم کس کتاب میں پڑھتے ہیں؟ سبھی بولیں نا، سبھی بولیں۔ جو نہیں بولتے مجھے تو لگتا ہے کہ لڑکے آئے نہیں، اور بھائی یہاں پر لڑنے کی کوئی بات نہیں، بولیں۔ جو ہماری زندگیوں میں لڑائیاں جھگڑے دھندے فساد ہو رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ کہاں سے؟ اجے بھی سارے نہیں بول رہے تھے، یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ جو دنیا میں اس وقت حالاتوں کو کیا واقعات چل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ و جدل ہو رہا ہے، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، گنچا لڑ رہے ہیں، کال پڑ رہے ہیں، لوگ بھوکوں مار رہے ہیں، آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور مفت میں آٹا لینے کے لیے بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کال پڑھیں گے، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اگر اجے بھی تو سمجھ رہا لگے تو پھر میں کی کر سکتا ہوں؟ خدا دا کلام بھی تو قوت پاور دے تاکہ تجھے سمجھو، تاکہ آپ سمجھیں یہ سب کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر، یہ کس میں لکھا ہے؟ اچھے بھی سارے دیواز میں بھی خدا نہ کرے کس طرح واقعہ پیش آئے، آج سبھی اس بات کو سمجھیں کیونکہ خدا کے کلام میں ہی یہ پاور ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کہاں پر؟ خدا کے کلام میں۔ ہاللیلویا، خدا کے کلام میں۔ جو آنے والا کل ہے، کل کیا ہوگا، یہ بھی کہاں پر لکھا ہے؟ خدا کے یہ بھی متی، لوکا، ایمال اور مختلف خطوط، ان کے بارے میں جو آنے والا کل ہے، ان فیوچر ہے، ان سب کے بارے میں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اسی خدا کے کلام میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام سچ ہے، خدا کا کلام حق ہے، اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ سچ ہے۔ خدا کا کلام، سبھی میرے ساتھ بولے، خدا کا کلام سچ ہے، خدا کا کلام سچ ہے، خدا کا کلام سچ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں یہیں سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں ایسی قدرت ہے۔ خدا کے کلام کی قدر و قیمت کو جانیں، خدا کے کلام کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ صرف آمین تو ہوگا کرتے رہیے خدا کے کلام تو بغیر، آمین گیت زبور گاتے رہیے خدا کے کلام تو بغیر، آمین ساتھ میں جاتے رہیے خدا کے کلام تو بغیر، جب تک خدا کا کلام ہماری زندگی میں نہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے سب کچھ بیکار ہے خدا کے کلام کے بغیر۔ اگر خدا کا کلام ہے تو سب ٹھیک ہے، ہاللیلویا، سب درست ہے۔ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے، سب کچھ سچ ہے۔ مانتے کہ نہیں مانتے آپ اس بات کو؟ کیا خدا کے کلام ہی سے ہم گمراہی سے نکلے ہیں؟ کیا خدا کے کلام نے ہمیں گمراہی سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ خدا کے کلام نے ہمیں جینا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ خدا کے کلام ہی نے ہمیں اندھے روحانی اندھے پن سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ خدا کے کلام ہی سے ہم نئی پیدائش کے حامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خدا کے کلام ہی سے ہمیں خوراک مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ خدا کے کلام ہی میں سے ہم ماضی حال اور مستقبل کے واقعات کو جان رہے ہیں یا نہیں جان رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم کہاں سے جان رہے ہیں؟ اسی میں سے، اسی میں سے۔ ہاللیلویا، ہم خدا کے کلام میں سے جان رہے ہیں، ہم خدا کے کلام ہی میں سے جان رہے ہیں، اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں خدمت کرنے کے لیے دیانتداری دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو خدمت کرنے کے لیے ہمیں عقل مندی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے کلام میں سے ہے۔ میں جو خدا کا خادم بطور خادم ہوتے ہوئے انجیل کی منادی کر رہا ہوں، تو یہ کہاں سے کر رہا ہوں؟ کہاں سے؟ خدا کے کیا میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں ناقص ہوں، میری سوچ، میری عقل، میری باتیں ناقص ہیں،
मेरे काम नाकिस हैं, और जब ये खुदा का कलाम मेरे पास मेरे साथ है तो यकीनन मैं इस कलाम के वसीला से ताकत रखता हूँ। हालेलुया। इसलिए इस कलाम की ताकत को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। और खुदा का कलाम हमें खिदमत करने के लिए ध्यानदारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी अता करता है। हम इस कलाम के बगैर कभी किसी किस्म की अक्लदारी, दानिशमंदी, ध्यानदारी या दीनदारी को हासिल नहीं कर सकते। ये खुदा का कलाम ही है जो हमें दीनदारी, अक्लमंदी, ध्यानदारी और दानिशमंदी सिखाता है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है और इस कलाम की बड़ी कुदरत है, इस कलाम की बड़ी कुव्वत है, इस कलाम की बड़ी ताकत है। ये खुदा का कलाम पावरफुल कलाम है और इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इब्लीस ने भी बहुत दफा इसका मुकाबला करने की कोशिश की, क्या इब्लीस कर सका? यही खुदा का सच्चा, हकीकी, जिंदा, मोतबर, मौसूल कलाम है जिसकी कुदरत, जिसकी कदर कीमत बेतहाशा है, बेपनाह है और इसकी कुदरत की कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल। ये मैं आपको खुदा के कलाम की कुदरत के बारे में बता रहा हूँ, ये भी अभी मुकम्मल नहीं, ये भी जितना खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा है मैं उतना बता रहा हूँ, लेकिन खुदा के कलाम की कुदरत को कोई बयान कर नहीं सकता। उतना ही कर सकता है जितना खुदा का पाक रूह उसे गाइड करे, जितना खुदा का पाक रूह उसकी रहनुमाई और मदद करे, उतना ही कोई से बयान कर सकता, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये कुदरत, खुदा के कलाम की कुदरत बेतहाशा, बेपनाह है, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। इसका कोई मुकाबला कार्य, अगर हम इब्लीस का मुकाबला करें तो वो भी हमें किससे करना पड़ेगा? किससे? अगर हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो किससे करते हैं? इब्लीस का मुकाबला भी हम किससे करते हैं? इब्लीस का मुकाबला करना हो तो कौन सा हथियार हम इस्तेमाल करते हैं? खुदा के कलाम से। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए किसी और हथियार की जरूरत नहीं पड़ती और ना इब्लीस किसी और हथियार को मानता है, और वो भी ये पावरफुल है। खुदा का कलाम पावरफुल है, इसकी कदर कीमत को जाने, खुदा के कलाम की कुव्वत और कुदरत और पावर को जाने और इसी से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं और करते भी हैं। हालेलुया। और जो झूठे उस्ताद हैं जो इस कलाम के मुताबिक तालीम नहीं देते, हम उनका मुकाबला भी कैसे कर सकते हैं? अगर वो कहे कि नहीं जी कलाम में टेढ़ा मेढ़ा मैसेज बयान खुदा का आता, अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें उसको किस तरह से समझाना है, उसको भी कौन सा हथियार उनके लिए भी इस्तेमाल करना है? झूठे उस्तादों के लिए भी हमने सच्चे कलाम का मुकाबला करना है। भाई नहीं, तू क्या कहना है? कलाम मुकद्दस में जो तू कहना है वो ऐसा नहीं लिखा, कलाम मुकद्दस में ऐसा लिखा है। जैसा कि इब्लीस जो है वो यूसुफ मसीह को 40 दिन और 40 रात का फाका करने के बाद कहाँ ले गया? बियाबान में, जंगल में, बियाने में, और वहां जाकर यीशु की आजमाइश करने लगा। और यीशु ने इब्लीस का मुकाबला भला किससे किया? यीशु ने इब्लीस का मुकाबला किससे किया? खुदा के कलाम से। हम भी, मैं और आप भी इब्लीस का मुकाबला इस कलाम से करते हैं, और फिर जो इस खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बयान करते हैं झूठे उस्ताद, हमें उनका मुकाबला भी इसी खुदा के कलाम से करना है, क्योंकि खुदा का कलाम पावरफुल है। खुदा का कलाम जो बड़ी कुदरत रखता है, खुदा के कलाम की कदर कीमत को जाने, इसके सिवा हम कुछ भी नहीं। अगर चर्च चाहते हैं तो हम किस लिए आते हैं? खुदा के कलाम के, खुदा के कोई भी शुक्रगुजारी की इबादत हो, कोई भी फैमिली में इबादत हो, कोई भी कहीं पर भी कोई बड़े से बड़ा फंक्शन भी हो, बड़ी से बड़ी कन्वेंशन भी हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी हो, अगर उसमें खुदा का कलाम नहीं सुनाया जाता, उस बड़े से बड़े क्रूसेड के अंदर खुदा की अंजील को, यीशु मसीह की अंजील को बयान नहीं किया जाता, तो फिर उस बड़े से बड़े क्रूसेड का भी कोई फायदा नहीं है। बड़े से बड़े क्रूसेड का भी कोई फायदा, हजारों की तादाद में बड़े बड़े क्रूसेड हो और उसमें मैसेज ना दिया जाए, दिया भी जाए तो ना होने के बराबर दिया जाए, 5 मिनट का दिया जाए, 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, और फिर उस क्रूसेड का कोई फायदा नहीं। क्रूसेड वो है यीशु ने क्या फरमाया? जहां 2 या 3 किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? क्रूसेड ये है कि जहां यीशु के नाम पर 2 या 3 लोग ही जमा क्यों ना हो, और उन 2
लोगों के दरमियान भी खुदा का कलाम सुनाया जाए तो ये बड़े से बड़ा क्रूसेड है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई क्रूसेड नहीं कि जहाँ खुदा के कलाम की मुनादी की जाए, जहाँ अंजील की बिशारत दी जाए, जहाँ खुदा के कलाम की कुदरत और कुव्वत को बयान किया जाए। और बहुत से कम चर्च और बहुत से कम लोग हैं, खातम हज़रात है, जो खुदा के कलाम की कुदरत और कुव्वत को बयान करते हैं। मेहरबानी करके मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे अपील है, हासिल कलाम ये है कि कलाम के बगैर कुछ नहीं। खुदा के कलाम के बगैर सबसे पहले हमारे दिल के अंदर क्या होना चाहिए? खुदा का कलाम। इससे हमारी कुदरत और हमारी कुव्वत, हमारी ताकत बढ़ती है खुदा के कलाम से। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम है तो हम पावरफुल हैं। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं तो हम नाकिस हैं, कमजोर हैं, किसी काम के नहीं। सब कुछ करने से पहले एक काम करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, क्योंकि इससे बड़ी पावर दुनिया में नहीं है, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी कुदरत दुनिया में कहीं नहीं। खुदा के कलाम से बढ़कर कुछ नहीं। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपनी आंखें